affecting strength of concrete. Factor affecting strength of concrete. Now you can tell me all the factor possible which is affecting strength of concrete. Beginning, you know all the factor. First of all, cement quality. Cement quality. We know if the cement quality is greater, then definitely strength is also going to be greater. Other than that, all the aggregate quality. Like what are the quality? Like what is the shape? What is the shape? What is the texture? What is the texture? What is the size? What is the aggregate to cement ratio? And what is the grading? What is the grading? How it is affecting that? All things we know. Shape. If shape is rounded, strength is less. If a texture is rough, strength is more. Size is fine, strength is more. Aggregate cement ratio is more, strength is less. Grading is well, then strength is more. Other than that, water cement ratio. Other than that, what? Water cement ratio. Because water cement ratio is more, definitely strength is going to be less. Strength is going to be less. Then other than that, admixture. Admixture. So I told you that if the water reducing admixture is there, if the water reducing admixture is there, strength is going to increase because they will reduce the water demand, strength will increase. But if it is air entraining admixture, then definitely strength is going to be reduced. Then after the admixture, just now in gel space ratio we have seen all the failure of concrete like segregation, bleeding, honeycombing. These all failure will reduce the strength. Why this all failure is coming? Because if you have not placed the concrete well, it may get segregated. If you are placing the concrete from more height, it will get segregated. If you are excess water, it will get segregated. If your proportion is not good, it will be get segregated. Similarly, bleeding will occur if it is having the excess of the water. If you are doing heavy compaction, more compaction, जब ज़्यादा compaction करोगे पानी बाहर आ जाएगा. Honeycombing, if the formwork is joint is very loose, the honeycombing will occur. So end of the day, strength will going to be reduced. Sixth, what I can say, compaction. So अगर आपने compaction excess में कर दिया, then strength will reduce because क्या आ जाएगा? Bleeding आ जाएगा. अगर आपने compaction deficiency में कर दिया, then strength will again reduce because आपका denseness ही नहीं रहेगा. Denseness, or I can say entrapted air void will be there. तो ये भी नहीं रहेगा. चलो ठीक है. Seventh, compaction के बाद seventh, curing. अब देखो, curing स्ट्रेंथ को डेवलप नहीं करता है, स्ट्रेंथ को इंक्रीज नहीं करता है, इट विल डेवलप द स्ट्रेंथ. और आई कैन से रेगुलेट हाइड्रेशन. एक चीज का ध्यान रखेंगे, मैं लिख देता हूं अभी, सिर्फ बाद में समझाऊंगा इसको. हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग और स्टीम क्यूरिंग प्लस 7 day वाटर क्यूरिंग. 7 day water curing increases the strength. क्यों होता है वो बाद में देखेंगे. Increases the strength. ध्यान देना, हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग लिखा है हमने. हाई प्रेशर स्टीम क्यूरिंग या केवल नॉर्मल स्टीम क्यूरिंग और 7 day वाटर विल इंक्रीज द स्ट्रेंथ. इसके अलावा क्यूरिंग के बाद में आप देखोगे साइज ऑफ स्पेसिमेन. अभी हमने देखा कि अगर आपने साइज ऑफ स्पेसिमेन छोटी कर दी, 100 mm कर दी, तो स्ट्रेंथ ज्यादा आएगी लेकिन बहुत ही फार होगी किससे? फार फ्रॉम ट्रू वैल्यू. फिर आया अपना शेप ऑफ स्पेसिमेन. अगर आपका शेप मान लीजिए सिलेंडर हुआ तो नो डाउट स्ट्रेंथ कम आएगा, लेकिन इट विल बी नियर टू ट्रू वैल्यू. तो बहुत सारी बातें, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू अंडरस्टैंड.
अगर मॉइस्चर कंटेंट रहता है, अगर मॉइस्चर कंटेंट रहता है तो भी स्ट्रेंथ रिड्यूस होती है। इसके अलावा रेट ऑफ लोडिंग अगर कम होती है, रेट ऑफ लोडिंग अगर कम होती है तो भी स्ट्रेंथ कम आती है। रेट ऑफ लोडिंग जैसे 40 न्यूटन पर स्क्वायर से अगर आप कम कर दोगे तो स्ट्रेंथ थोड़ी कम आती है। इन दैट केस ऑल्सो स्ट्रेंथ विल बिकम लेस। ट्रू वैल्यू, टीवी कुछ नहीं है, ट्रू वैल्यू है। सभी में से एक फैक्टर ऐसा बता दो जो ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करता हो। इफ आई आस्क यू टेल मी ओनली वन फैक्टर विच कैन अफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी अप टू द नेक्स्ट लेवल। ड्यूरेबिलिटी को जो भयंकर ही अफेक्ट करता है, भयंकर वाला भयंकर अफेक्ट कर दे, वो कौन है? वो कौन है? कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन, क्योंकि अगर कॉम्पैक्शन में कमी रह गई एंट्रैप्टेड एयर वॉइड रह जाएगा, और अगर एक बार एंट्रैप्टेड एयर वॉइड रह गया, जो चाहेगा जब चाहेगा अंदर आके आपको बर्बाद करके जाएगा। समझ में आया आपको बात? इसका मतलब यह है ड्यूरेबिलिटी विल बी अफेक्टेड बाय डेफिशिएंसी इन कॉम्पैक्शन। डेफिशिएंसी इन कॉम्पैक्शन, क्योंकि जैसी डेफिशिएंसी रखी सरफेस बन जाएगी क्या? परमिएबल। और जैसी एक बार सरफेस, अगर एक बार सरफेस परमिएबल बन गई, एक बार सरफेस अगर आपकी बर्बाद हुई, तो फिर आपको आगे से आगे बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि nobody can stop you to get to become what worse to worse condition. All external attack will happen. All external attack will happen, including frost action and carbonation. Carbonation is very dangerous. Frost action तो आपको पता ही है, परमिलिटी की वजह से आता है। ये कार्बोनेशन क्या होता है वो बता देता हूं आपको अलग से। अच्छा, इसके अलावा सल्फर, यस अटैक करेगा। इसके अलावा सल्फर के अलावा मैं पूछूं आपसे कि एसिड अटैक करेगा कि हाँ करेगा, मतलब जो बाहर से आ सकता है। ये कार्बोनेशन क्या होता है? और सरफेस परमिएबल, क्योंकि जैसी डेफिशिएंसी रखी सरफेस बन जाएगी क्या? परमिएबल। और जैसी एक बार सरफेस, अगर एक बार सरफेस परमिएबल बन गई, एक बार सरफेस अगर आपकी बर्बाद हुई, तो फिर आपको आगे से आगे बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि nobody can stop you to get to become what worse to worse condition. All external attack will happen. All external attack will happen, including frost action and carbonation. Carbonation is very dangerous. Frost action तो आपको पता ही है, परमिलिटी की वजह से आता है। ये कार्बोनेशन क्या होता है वो बता देता हूं आपको अलग से। अच्छा, इसके अलावा सल्फर, यस अटैक करेगा। इसके अलावा सल्फर के अलावा मैं पूछूं आपसे कि एसिड अटैक करेगा कि हाँ करेगा, मतलब जो बाहर से आ सकता है सब अटैक करेंगे। इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड इतनी डेंजरस होती है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड पानी से रिएक्ट करती है,
ये बना देती है H2CO3 जो कि क्या है, एक एसिड है। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर गई। अंदर क्यों गई? क्योंकि दरवाजे खुले थे, ऑल द गेट्स वर ओपन, सो इट वेंट इनसाइड। इट वेंट इनसाइड, रिएक्टेड विद वाटर, मेड द कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ दिस एसिड, now this carbon dioxide will also react with पोर्टलैंडाइट, क्योंकि हमको पता है कि इस एसिड के इफेक्ट को रोकने के लिए हमारे पास में पोर्टलैंडाइट का OH- आयन था। we were having OH- आयन of पोर्टलैंडाइट which could have saved us from the attack of the acid। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये भी CaCO3 में कन्वर्ट होके प्रेसिपिटेट बना लेगा। कहने का मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड आपको मौत का फरमान लेके आया, और जो आपको मौत से बचा सकता था, ये उसको भी ले डूबा, ये उसको भी ले डूबा। क्लियर है? अब क्योंकि उसको भी ले डूबा तो भयंकर कोरोजन आएगी। रिजल्ट्स इन एक्सेस कोरोजन, results in excess of the corrosion। दूसरा, durability also affected by excess water cement ratio। ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो अफेक्टेड बाई एक्सेस वाटर सीमेंट रेशियो। कैसे? क्योंकि अगर वाटर सीमेंट रेशियो एक्सेस में हुआ, अगर वाटर सीमेंट रेशियो क्या हुआ, एक्सेस में हुआ, तो दिक्कत क्या होगी? पोरोसिटी बढ़ जाएगी। पोरोसिटी क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी को रुकने के लिए जगह चाहिए। अब सीमेंट के सॉलिड तो उतना ही है, वो पानी क्या करेगा? एक्स्ट्रा पानी क्या करेगा? सॉलिड को धक्का मार के अपनी जगह बनाएगा। भाई मेरे पास सॉलिड तो इतने ही थे, मेरे पास मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पहले इतने ही सॉलिड थे, और मैंने इसमें पानी भरा हुआ था। ये मैंने इसमें पानी भरा हुआ था इस तरह से, ऑल द वाटर हैज बीन फिल्ड लाइक दिस। अब अगर मैं एक्स्ट्रा पानी डालता हूं तो क्या होगा? सॉलिड तो 9 ही रहेंगे, पानी अपनी जगह बनाएगा सब सॉलिड को धक्का मार के, और उस जगह बनाने से क्या होगा? वॉइड इंक्रीज होंगे, वॉइड इंक्रीज करने से क्या होगा? पोरोसिटी आ जाएगी। पोरोसिटी जैसे यही फिर से यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, सरफेस विल बिकम व्हाट? इम्परमेबल। चलो अब लिखिए आप एनडीटी टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। देखिए एनडीटी टेस्ट का क्या मतलब है, सुनते हैं ध्यान से। देखो जो भी हमने अब तक पढ़ा, whatever we have studied till now, हमने ये पढ़ा कि देखो भैया ऐसा है कि हमको जो कंक्रीट है वो एकदम लैब में बनाना है, इतना उसका मोल्ड का साइज होना चाहिए, ये आप इतना ही पानी डालेंगे, आप कॉम्पैक्शन करेंगे, हर लेयर को कॉम्पैक्ट करेंगे, आप हर लेयर में सेंटर एप्टीट्यूड निकालेंगे, आप उसको 24 आवर बिफोर पुटिंग इनटू द लेयर रखेंगे, उसके बाद वो सेट होगा, फिर पानी में 24 घंटे पानी में रखेंगे, 28 दिन तक 18 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करेंगे टेम्परेचर, तब जाके जो क्यूब बनेगा उसकी स्ट्रेंथ XYZ कुछ ना कुछ आएगी। और आप फील्ड में क्या करते हो?
आप फील्ड में क्या करते हो? आपके घर में घर जो बना ना, वहां जो बीम या कॉलम जो बना है ना, आपके पापा बोलते हो कि सुबह कि बेटा उठ के ना उस पर पानी मार के आओ। हम उठ के जाते भी नहीं है, हम पानी तक मारने नहीं जाते। अच्छा, अगर आप नहीं गए तो पापा जाएंगे। पापा गए सुबह 6 बजे, उसके बाद मान लो 9 साढ़े 9 बजे वो मजदूर आए, वो चले गए। उसके बाद मान लीजिए 9 साढ़े 9 मजदूर आ गए, फिर वो लंच पे जाने से पहले फिर मार दिया एक बार पानी, फिर शाम को जाने से पहले फिर मार दिया। तो जो कंक्रीट आपने लैब में 24 आवर्स 28 डेज तक पानी में डुबो के रखा था, उसके C3S की डिमांड को आपने एनी टाइम फुल किया था, हर समय आपने उसके C3S को डिमांड को एकदम गजब का फुलफिल किया था, आज वो मर रहा है, तड़प रहा है पानी के लिए, क्योंकि आप तो सिर्फ 4 बार पानी पिला के गए हो। तो कैसे आप उम्मीद कर रहे हो कि वो आपको उतनी ही स्ट्रेंथ डेवलप करके दे देगा? बिना तोड़े एक बार टेस्ट करके देखो कि क्या उसमें वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था, क्या उसमें वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए था, या जिस उसके आसपास भी पहुंच रहा है। उसी को हम बोलते हैं क्या? नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जिसमें सबसे पहला टेस्ट है रीबाउंड हैमर टेस्ट, जिसमें सबसे पहला टेस्ट है रीबाउंड हैमर टेस्ट, जो कि एक हार्ड कंक्रीट पे किया जाता है, हार्ड कंक्रीट पे किया जाता है। अब देखो क्या है रीबाउंड हैमर टेस्ट। रीबाउंड हैमर टेस्ट में ये आपकी कंक्रीट की वॉल है, इसके ऊपर आप रीबाउंड हैमर मार रहे हो। हैमर का ये होता है प्लंजर, दिस इज अ प्लंजर ऑफ हैमर which is, or I will make a line diagram. This is a plunger of hammer which is attached with the spring controlled mass, which is attached with the spring controlled mass. मतलब मान लीजिए यही कंक्रीट की दीवार है, मैं यहाँ पे इसको पंच करूंगा तो ऐसा बोलेगा पुचक, ऐसा बोल के आएगा। इसका मतलब जितना आपने प्रेस किया वो स्प्रिंग कंट्रोल मास को वापस से रिबाउंड करेगा, और रिबाउंड की वैल्यू आपको यहाँ पे ऊपर स्केल में मिल जाएगी। इसी के ऊपर कवरिंग होती है, इस तरह से पूरा कवरिंग होगा इसके ऊपर, और यहाँ पे इसकी स्केल आपको अटैच होके मिल जाएगी। Here you will get the scale which is attached over here, in which the values are written. तो जैसे ये पीछे आएगा you will get that value, आपको वैल्यू वहां से मिल जाएगी। तो स्प्रिंग कंट्रोल्ड मास का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। स्प्रिंग कंट्रोल्ड मास rebounds back and displacement results in rebound number। उसी को हम रिबाउंड नंबर बोलते हैं, जिसको आप N से या R से किसी से भी दिखा सकते हो। रिबाउंड नंबर को आप N से R से किसी से भी दिखा सकते हो, ठीक है। अब देखते हैं, देखिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन है? सबसे पहला एज ऑफ कंक्रीट। अगर कंक्रीट बहुत पुराना है तो आपका रिबाउंड नंबर क्या आएगा? कम ही आएगा। क्यों कम आएगा? क्योंकि कंक्रीट ऑलरेडी क्या हो चुका है? डिटोरिएट हो चुका है। अब आप सोचो यार ये तो M40 जितना रिबाउंड ही नहीं कर रहा, अरे तो कैसे करेगा यार? इतना शरीर बुढ़ा हो जाता है, वो तो कंक्रीट है। दूसरा मॉइस्चर कंटेंट अगर ज्यादा हुआ तो रिबाउंड नंबर कम आएगा। कैसे रिबाउंड नंबर कम आया? देखो ध्यान से, ये मान लीजिए वॉल है, बिल्कुल एक हाइपोथेटिकल कंडीशन बनाने जा रहा हूं। ये मान लीजिए वॉल है और इस जगह पे मान लो मॉइस्चर प्रेजेंट है, इस जगह पे मॉइस्चर प्रेजेंट है, ये मॉइस्चर प्रेजेंट है। इसका मतलब आपका जो हैमर है वो एक्चुअली पानी को हिट कर रहा है, तो पानी को हिट कर रहा है तो वापस उतना धक्का आके आएगा ही नहीं, तो रिबाउंड नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सिमिलरली रफनेस अगर ज्यादा हुई तो क्या होगा? ये देखते हैं, इससे भी रिबाउंड नंबर कम आएगा। क्यों आएगा? ये वॉल हो सकती थी, लेकिन रफनेस की वजह से वॉल की सिचुएशन ये है, ये रफनेस की वजह से सिचुएशन है। जब इतना रफ वॉल है तो आपका रिबाउंड एक्चुअली किसको हिट कर रहा है? ये एयर वॉइड्स को हिट कर रहा है, इसलिए रिबाउंड नंबर क्या आएगा? कम आएगा। फिर आएगा एंगल ऑफ अटैक। अब देखो, अगर आपका एंगल ऑफ अटैक डाउनवर्ड है, जैसे मान लीजिए ये वॉल है, और अगर एंगल ऑफ अटैक डाउनवर्ड है इस तरह से अगर आपका एंगल ऑफ अटैक है, तो क्या होगा? देखो ध्यान से,
जैसे आपने एंगल ऑफ अटैक किया, जैसे आपने अटैक किया तो इस तरह से तो रिबाउंड करेगा, वो अपोजिट साइड में रिबाउंड करेगा, लेकिन साथ में ये एम ग्रेविटी की वजह से नीचे जा रहा है, तो कुल मिला के आपका रिबाउंड नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि दोनों चीज अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रही है। यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि इस तरह से जा रहा है, अगर आपका अटैक ऐसा है, अगर आपका अटैक ऐसा है इस तरह से, तो अब क्या होगा, धक्का खा के इसको मार के रिबाउंड भी ऐसे ही जाएगा और ग्रेविटी भी आपको नीचे लेके जा रही है, इसका मतलब इस केस में आपका रिबाउंड नंबर क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो ये हुआ रिबाउंड नंबर हैमर टेस्ट। हार्ड कंक्रीट पे किया जाएगा क्योंकि सॉफ्ट कंक्रीट पे तो मार ही नहीं सकते, हार्ड कंक्रीट पे इसको हिट किया जा सकता है, एट द हार्ड कंक्रीट ओनली वी कैन हिट इट। क्लियर है, ठीक है। अगला जो टेस्ट आता है दैट इज अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट, ये हार्ड और सॉफ्ट दोनों कंक्रीट पे किया जा सकता है, हार्ड एंड फ्रेश कंक्रीट दोनों पे किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है, क्योंकि इसमें आप देखते हो वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज द फंक्शन ऑफ मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। वेलोसिटी ऑफ साउंड हम पास करेंगे, कैसे पास करेंगे, ये मान लीजिए कंक्रीट का क्यूब है, ये कंक्रीट का क्यूब है, मान लीजिए एल लेंथ का कंक्रीट है। वी विल प्रोवाइड अ ट्रांसमीटर हियर, वी विल प्रोवाइड अ ट्रांसमीटर हियर एंड रिसीवर हियर। ट्रांसमीटर से हम एक साउंड वेव पास करवाएंगे, ट्रांसमीटर से हम एक साउंड वेव पास करवाएंगे एंड इट शुड बी अचीव रिसीव्ड ओवर हियर। इट विल ट्रेवल थ्रू दिस कंक्रीट स्पेसिमेन। अब ये एल लेंथ है, आप टाइम नोट कर लीजिए, आपने कितने समय में रिसीव किया, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम करके क्या निकाल सकते हो, स्पीड निकाल सकते हो, वी कैन कैलकुलेट द स्पीड। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये स्पीड ज्यादा आई इसका मतलब मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी क्या ज्यादा है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी ज्यादा मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा है। अगर वीएस ज्यादा आया मतलब डेंसिटी ज्यादा है, मतलब कि आपका स्पेसिमेन क्या है, पूरा कॉम्पैक्टेड है, डेंसनेस अच्छी है। तो कुल मिला के वीएस की ज्यादा वैल्यू आपको बताती है कि कंक्रीट अच्छा है कि नहीं, कंक्रीट इज गुड और नॉट। तो क्या है, अगर वीएस की वैल्यू अगर हम किलोमीटर पर सेकंड में चेक करें, तो अगर ये 4.5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा आया, इसका मतलब एक्सीलेंट कंक्रीट है, इसका मतलब एक्सीलेंट कंक्रीट है। अगर 3.5 से 4.5 के बीच में आया, 3.5 से 4.5 के बीच में आया तो ये गुड कंक्रीट है, और 3 से 3.5 के बीच में आया तो ये मॉडरेट कंक्रीट है, मॉडरेट कंक्रीट है। और अगर बिल्कुल 3 से कम आया तो पुअर या डाउटफुल कंक्रीट है, डाउटफुल कंक्रीट है, डाउटफुल कंक्रीट है। ये चीज आपको क्या क्या दिखाती है, अल्ट्रासोनिक वेलोसिटी क्या दिखाती है, मॉडुलस ऑफ वेलोसिटी दिखाती है, डेंसिटी दिखाती है, कॉम्पैक्टनेस दिखाती है, स्ट्रेंथ दिखाती है, ये सारी चीजें दिखा रही है। क्योंकि कॉम्पैक्टनेस दिखा रही है इसलिए फ्रेश कंक्रीट में भी काम आ जाता है।
इसके अलावा टेस्ट होते हैं बहुत सारे, इसके अलावा और भी टेस्ट है, जैसे कि कोर कटर टेस्ट है, कोर कटर टेस्ट है। तो नाम में लिखा है, आप ये भी किसके ऊपर होगा, हार्ड कंक्रीट के ऊपर ही होगा, हार्ड कंक्रीट के ऊपर ही होगा। करना क्या है, एक कोर को लेके आना है, उसके अंदर से एक कोर लेके आनी है और उसको टेस्ट करना है, जो 80 to 85% ऑफ द क्यूब स्ट्रेंथ अचीव कर जाना चाहिए। नहीं कर रहा है मतलब अंदर से सब मामला खराब है। तो कोर टेकन आउट एंड checked in CTM, checked in CTM should result in core checked, core taken out and checked in CTM, checked in CTM should result in, sorry, checked in CTM should result in 80 to 85% of cube strength, 80 to 85% of cube strength। अब आता है एक पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, ये भी हार्ड कंक्रीट के ऊपर ही होगा, क्योंकि आप कुछ तो पेनिट्रेट करवा रहे हो। अब सोचो क्या पेनिट्रेट करना है, एक बात मानो, एक बात सुनो, अगर मैं कील को ईंट में डालूं, ब्रिक में, और एक कील को कंक्रीट में डालूं, किसमें आसान है डालना, ब्रिक में। क्यों ब्रिक में, क्योंकक्योंकि ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मैं आराम से अंदर एंटर कर जाएगी। तो यहां पे एक बहुत स्पेशल टाइप ऑफ डालूं, 80% कोर टेकन आउट and checked in CTM, checked in CTM should result in core checked, core taken out and checked in CTM, checked in CTM should result in, sorry, checked in CTM should result in 80 to 85% of cube strength, 80 to 85% ऑफ क्यूब स्ट्रेंथ। अब आता है एक पेनिट्रेशन टेस्ट, पेनिट्रेशन टेस्ट, ये भी हार्ड कंक्रीट के ऊपर ही होगा, क्योंकि आप कुछ तो पेनिट्रेट करवा रहे हो। अब सोचो क्या पेनिट्रेट करना है, एक बात मानो, एक बात सुनो, अगर मैं कील को ईंट में डालूं, ब्रिक में, और एक कील को कंक्रीट में डालूं, किसमें आसान है डालना, ब्रिक में। क्यों ब्रिक में, क्योंकि ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मैं आराम से अंदर एंटर कर जाएगी। तो यहां पे एक बहुत स्पेशल टाइप ऑफ कील डालते हैं, जिसका नाम होता है विंडसॉर प्रॉब। वो विंडसॉर प्रॉब पेनिट्रेट हो पा रही कि नहीं हो पा रही, ये डिसाइड करेगा कि आपके पास स्ट्रेंथ है कि नहीं। रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ विंडसॉर प्रॉब, तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट पेनिट्रेशन ऑफ विंडसॉर प्रॉब ऑफ डाया 6 mm, 6.5 mm की होती है और लेंथ होता है 80 mm। सिग्निफाई द स्ट्रेंथ, सिग्निफाई स्ट्रेंथ। वो विंडसॉर प्रॉब घुसी कि नहीं घुसी, ये डिसाइड करेगा आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर आ जाते हैं 5वें नंबर पे, 5th नंबर पे। 5th नंबर पे टेस्ट आएगा, एक टेस्ट आएगा जिसका नाम क्या है, एक टेस्ट आएगा जिसका नाम क्या है, पुल आउट टेस्ट, पुल आउट टेस्ट। अगेन ये भी हार्ड कंक्रीट पे होगा। अब नाम में लिखा है टेस्ट का मतलब पुल आउट, आपको कुछ तो खींच के बाहर लाना है। इसका मतलब आपने कास्टिंग के दौरान एक स्टील की रॉड डाली अंदर, अभी उसको आप खींच के बाहर लेके आइए। अगर आप खींच के बाहर लेके आ पा रहे हो, अच्छी बात है, नहीं ला मतलब बुरी बात है, और नहीं ला पा रहे हो मतलब आपके कंक्रीट में स्ट्रेंथ गेन हो गई है। तो रेजिस्टेंस अगेंस्ट पुलिंग आउट एंड स्पेशल enlarged and steel rod, resistance against pulling out and special enlarged and steel rod which is already casted, which was already casted during, which was already inserted during casting, inserted during casting, casting signifies pull out resistance, signifies strength developed, signifies strength developed। ये बताता है कि कितनी स्ट्रेंथ डेवलप हुई। इसके अलावा रेडियो एक्टिव टेस्ट है, रेडियो एक्टिव टेस्ट हमने कल ही देखा था कि मोर्टार अगर बहुत ही डेंस हुआ,
इफ द मोटर इज डेंस तो आपके एक्सरे और गामा रे उसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं होंगे, एक्स एंड गामा रे विल नॉट बी एब्जॉर्ब। तो मतलब कि अगर कंक्रीट डेंस है तो किसी तरह का कोई भी रे एब्जॉर्ब नहीं होगा। इसका मतलब एक्सटेंट अगेंस्ट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्स-रे एंड गामा रे signifies strength achieved। ठीक है, सेवेंथ लास्ट है इसमें मैच्योरिटी टेस्ट। मैच्योरिटी टेस्ट कुछ नहीं करना है, मैच्योरिटी मीटर से मैच्योरिटी मेजर करनी है और आपको फॉर्मूला बता रखा है स्ट्रेंथ कितनी आती है मैच्योरिटी से। ये हार्ड एंड फ्रेश दोनों पे किया जा सकता है, फ्रेश कंक्रीट दोनों पे किया जा सकता है। डिटरमाइन या मेजर मैच्योरिटी विथ मैच्योरिटी मीटर, मैच्योरिटी मीटर एंड एक बार मैच्योरिटी मेजर कर लीजिए एंड देन कैलकुलेट, कॉमा कर लीजिए, कैलकुलेट स्ट्रेंथ बाय प्लोमैन फॉर्मूला। देख लीजिए कितनी स्ट्रेंथ डेवलप हुई है प्लोमैन फॉर्मूला से। Noted. Now we are left with only two topics, that is production of concrete and we are left with special type of concrete। बहुत important topic करना है जिसका नाम है manufacturing of concrete, जिसका नाम है manufacturing of concrete। पूछते सब कुछ है लेकिन डिटेलिंग इसी के बारे में दे रखी है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट। तो इसको हमको डिटेल में भी पढ़ना है, उतना ही डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे भी। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट में देयर आर 7 स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, 7 स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग के। सबसे पहले होता है बैचिंग। बैचिंग मतलब कि इंग्रेडिएंट कलेक्ट करना, उसके बाद आएगा मिक्सिंग, मिक्सिंग के बाद आएगा ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट के बाद आएगा प्लेसिंग, प्लेसिंग के बाद आएगा कॉम्पैक्शन, और कॉम्पैक्शन के बाद आएगा फिनिशिंग, और फिनिशिंग के बाद आएगा क्यूरिंग। ये 7 स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। दिस इज 7 स्टेप्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंक्रीट।
7 स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग के कंक्रीट बनाने के, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी के लिए कर लिया, हाफ क्वेश्चन बन गया सर, प्लेसिंग एंड स्टैकिंग ऑफ सीमेंट के क्वेश्चन नहीं बने सर। अब देखो मैंने आपको हमेशा क्लास की शुरुआत में कहा था कि जब तक मेरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हो जाए तब तक मत करना। अब देखो आज शुरू हुआ है मैन्युफैक्चरिंग, आपने बीच में ही कर ली है, चलो कर ली अच्छी बात है, लेकिन जरूरत नहीं थी ना, एक बार चैप्टर कंप्लीट होने दिया करो, कोई भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि चैप्टर पूरा इंटर रिलेटेड होता है, ठीक है। चलो ये 7 स्टेप है, 7 स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग के। सबसे पहला होता है बैचिंग। बैचिंग का मतलब क्या है? बैचिंग का मतलब क्या है कि सभी रॉ इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करना। अब मेरी बात सुनना, इस पूरे टॉपिक को मैं यहाँ पे रफली लिखूंगा, वैसे आपको समझना है, वैसे आपको लिखना है। इसको आप बिल्कुल वैसे नहीं लेंगे कि बिल्कुल एकदम प्रॉपर लाइन बाय लाइन लिखेंगे हम, ठीक है, उस तरह से नहीं होगा। बैचिंग, बैचिंग का मतलब है, बैचिंग का अपने आप में मतलब क्या होता है? रॉ इंग्रेडिएंट को कलेक्ट करना, कलेक्शन ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट, कलेक्शन ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट। कलेक्शन ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट का मतलब हुआ कि जितने भी रॉ इंग्रेडिएंट है, जैसे कि अपना सीमेंट हो गया, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, पानी, प्लास्टराइजर, फ्लाई ऐश, जो भी आपको डालना है, उन सबको आपस में कलेक्शन करना फॉर ईच बैच, फॉर ईच बैच इन रिक्वायर्ड प्रपोर्शन, इन रिक्वायर्ड प्रपोर्शन। जो भी आपको प्रपोर्शन चाहिए उसमें आपको इसको क्या करना है? इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है। अभी जो बैचिंग है दो टाइप से की जा सकती है। बैचिंग जो है वो दो टाइप से की जा सकती है, या तो हम वॉल्यूम बैचिंग कर सकते हैं, या हम वे बैचिंग कर सकते हैं। या तो हम वॉल्यूम बैचिंग कर सकते हैं, या फिर हम वे बैचिंग कर सकते हैं। अब इन दोनों में से सबसे अच्छी बैचिंग कौन सी है? वे बैचिंग है। क्यों वे बैचिंग अच्छी है, क्यों नहीं वॉल्यूम बैचिंग अच्छी है? उसको ध्यान से सुन लेना, आप उसको ध्यान से सुन लेना। वे बैचिंग इसलिए अच्छी है क्योंकि इसके अंदर किसी तरह का कोई करेक्शन नहीं होता है। वॉल्यूम बैचिंग में आपने कल देखा था, वेट एंड ड्राई का आपको करेक्शन लगाना पड़ेगा। सैंड अगर बल्किंग में हुई तो करेक्शन लगाना पड़ता है। तो बहुत सारे करेक्शन रिक्वायर्ड होते हैं। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेक्शन, रिक्वायर्स लॉट ऑफ करेक्शन। इसीलिए हमें ये नहीं लगानी चाहिए, इसलिए हमें नहीं लगानी चाहिए। अब किसमें कितना आपको करेक्शन अलाउड है, किसमें कितना करेक्शन अलाउड है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। किसमें कितना करेक्शन अलाउड है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो देखो किसमें कितना करेक्शन अलाउड है। जो सीमेंट है, ध्यान से देखना, सीमेंट है, सीमेंट में आपको ±1% का करेक्शन अलाउड है। सैंड एग्रीगेट में, या कह दो कि फाइन एग्रीगेट में, फाइन एग्रीगेट में आपको ±2% का करेक्शन अलाउड है। उसके बाद वाटर में भी आपको ±1% का करेक्शन अलाउड है, ±1% करेक्शन अलाउड है। फिर आपको एडमिक्सचर में ±3% का करेक्शन अलाउड है, ±3% का करेक्शन अलाउड है, ठीक है। और इन सब में, और ये सब बाई वेट है, ये सब बाई वेट है। और इन सभी के सभी में आपको 1% का स्केल करेक्शन भी अलाउड है। अब स्केल करेक्शन क्या होता है उसको देखते हैं। एक बार मैं आपको लिख देता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा, एक ही बार में समझ में आ जाएगा, इतना कोई मुश्किल भी नहीं समझना इसको। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि अगर मैं 300 किलो सीमेंट लेता हूं, 300 किलो सीमेंट लेता हूं, तो मैं अगर उसमें आपको 297 से 303 kg भी अगर लूंगा तब भी काम बन जाएगा, उतना करेक्शन आपको अलाउड है। सिमिलरली एग्रीगेट्स में ±2%, वाटर में ±1% और एडमिक्सचर में ±3%। जो सबसे कम अमाउंट में मिलाते हैं उसमें सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन है, क्योंकि गलती के चांसेस ज्यादा होते हैं। बाकी बैचिंग को करने के लिए आपके पास में ऑटोमेटिक तरीके भी हैं, ऑटोमेटिक भी हो सकती है, सेमी ऑटोमेटिक भी हो सकती है, और मैनुअली तो खैर हम लोग करते ही हैं, तो 3 तरीके हो गए बैचिंग करने के। बैचिंग करने के कितने तरीके हो गए? 3 तरीके हो गए। कलेक्शन ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट इन द रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन फॉर ईच बैच, दिस इज व्हाट अबाउट द बैचिंग। अब बैचिंग कर ली, कलेक्शन कर लिया, अब हम चल रहे हैं किसमें? मिक्सिंग में। ध्यान से सुनते रहिएगा। अब हम चल रहे हैं किसमें? मिक्सिंग में। मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ? आप क्या समझते हैं मिक्सिंग से? कब आप बोलेंगे कि हाँ भाई सब चीजें मिक्स हो गई? तब आप बोलेंगे जब आपको क्या मिल जाए? ऑल एग्रीगेट कोटेड विद सीमेंट पेस्ट, बोलेंगे कि हाँ भाई कर लिया। तो 3
मिक्सिंग का मतलब क्या हुआ, आप क्या समझते हैं मिक्सिंग से? कब आप बोलेंगे कि हाँ भाई सब चीजें मिक्स हो गई? तब आप बोलेंगे जब आपको क्या मिल जाए, ऑल एग्रीगेट कोटेड विद सीमेंट पेस्ट, ऑल एग्रीगेट कोटेड विद सीमेंट पेस्ट और गेट यूनिफॉर्म कलर। मिक्सिंग कितनी करनी चाहिए, कितने मिनट तक करनी चाहिए? 2 मिनट्स के आसपास की मिक्सिंग होती है। अगर आपका 25 से 30 आरपीएम तक 25 से 30 आरपीएम तक वो चक्रा घूमते रहता है, मतलब कि मिक्सर अगर 25 से 30 आरपीएम घूमते रहा तो 2 मिनट की मिक्सिंग काफी है। अगर कोई स्लो मिक्स है, अगर कोई मिक्सर स्लो है, मान लीजिए स्लो मिक्सर है तो उसको ऑब्वियस सी बात है टाइम क्या लगेगा, टाइम ऑफ मिक्सिंग क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। और अगर कोई स्लो मिक्स की जगह अगर मान लीजिए कोई फास्ट मिक्सर है या कोई फास्ट मिक्स है, अगर कोई फास्ट मिक्सर है तो उसको उतने ही मिक्स को करने में टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। लेकिन किसी भी एक टाइप के मिक्सर में अगर आप जरूरत से ज्यादा टाइम लेते हो तो आपकी स्ट्रेंथ घट जाती है, ब्लीडिंग कर जाएगा। जैसे भी आपको बोल दिया कि कोई स्लो मिक्सर है, उसको सेम टाइप की मिक्स करने में 5 मिनट लगेंगे, तो 5 मिनट तक करो ना, उसको लगा के छोड़ मत दो आधे घंटे। सिमिलरली अगर कोई बहुत फास्ट मिक्सर है, उसको वही मिक्सिंग अचीव करने में मात्र 40 सेकंड लगेगा। अब आप उसको अगर लगा के छोड़ दोगे, सारा पानी निकल के उछल के बाहर आ जाएगा। इसलिए मिक्सिंग वो करते हैं, ठीक है। जनरली हम लोग हैंड मिक्सिंग अवॉइड करते हैं, बट अगर फिर भी करना हो, फिर भी करने का काम पड़े तो आपको 5 से 10% एक्स्ट्रा सीमेंट लेना पड़ेगा। एक्स्ट्रा सीमेंट शुड बी टेकन। अब ऐसा क्यों किया हमने, क्यों सीमेंट को हमने एक्स्ट्रा लिया? क्योंकि जब आप हाथ से मिक्स करते हो तो आधी से ज्यादा कंक्रीट तो उड़ जाती है। जब आप हाथ से मिक्स करते हो तो मैक्सिमम कंक्रीट पोर्शन विल गेट व्हाट, इवोपरेटेड, मतलब उड़ने लग जाता है। अब जब उड़ जाएगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, उसको कंपनसेट करने के लिए हम लोग आधा थोड़ा बहुत हम लोग लेके रखते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो यहां तो हो गई मिक्सिंग की बात। हम लोग को करना पड़ेगा आर्टिफिशियल मिक्सिंग। आर्टिफिशियल मिक्सिंग के लिए हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं टिल्टिंग मिक्सचर। हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं टिल्टिंग मिक्सचर, जो इस तरह का मिक्सचर होता है, जिसमें घूमते रहता है पूरा मसाला। तो ये किस तरह का शेप है, डबल फ्रस्टम शेप। इसका शेप जो है वो डबल फ्रस्टम शेप है। डबल फ्रस्टम शेप का मतलब हुआ कोई भी कोन, ध्यान सुनना, कोई भी अगर कोन हो, जैसे ये कोन है, इस कोन को जब आप ऊपर से काट दो यहां तक, तो ये जो शेप बना ये कहलाता है फ्रस्टम। जैसा अपना स्लम्प कोन था वो भी एक फ्रस्टम है। Our slump cone is also a frustum. किसी भी कोन को if you cut in between, so whatever the shape is left, known as what frustum. इसी को हम फ्रस्टम बोलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, see carefully, this is what frustum. तो डबल फ्रस्टम शेप क्या हुआ, किसका हुआ, टिल्टिंग मिक्सचर का। इसमें जो भी ब्लेड्स लगी होंगी, whatever the blades are present over there, वो ब्लेड्स कुछ इस तरह से प्रेजेंट है, इस तरह का डिजाइनिंग करती है कि पहले तो आपका मसाला ऐसा गोल घूमता है, पहले तो सर्कुलर मोशन लेता है, फिर टॉप पे जाके वर्टिकल फॉल कर जाता है, कहने का मतलब है कि पहले तो सर्कुलर मोशन ऑफ मिक्स, देन वर्टिकल फॉल। अच्छा, ये नाम है टिल्टेड क्योंकि ये इट इज माउंटेड ओवर टिल्टेड एक्सिस। ये टिल्टेड एक्सिस के ऊपर क्या है, माउंटेड है, इसलिए है। अच्छा, क्यों है टिल्टेड एक्सिस के ऊपर माउंटेड? ताकि जैसे आपका काम खत्म हो तो आपका डिस्चार्ज यहाँ पे खुद ही आउटलेट पे कलेक्ट हो जाए, बिना किसी सेग्रीगेशन पे। इस मिक्सचर को यूज करने से पहले आपने देखा होगा, सबसे पहले वो बाल्टी भर के पानी डालते हैं उसके अंदर। अब आपने बाल्टी भर के पानी क्यों डाला? Why you have kept lot of water over there? Just to remove the previous mix which has been stuck over there. उस प्रीवियस मिक्स को जो चिपक चुका है वहां पे, उसको हटाने के लिए हम लोग को बाल्टी भर के पानी डालना पड़ता है। That process is known as what? Buttering. तो water application before mix,
वाटर एप्लीकेशन बिफोर मिक्स इज नोन एज बटरिंग, इज नोन एज बटरिंग। सो ये कुछ इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसका एग्जांपल ले लें, जैसे कि 85T। 85T का मतलब है 85 लीटर टिल्टिंग मिक्सचर। इसका मतलब यही है कि ये 85 लीटर क्या है, टिल्टिंग मिक्सचर है। ये 85 लीटर क्या है, टिल्टिंग मिक्सचर है। ये बात का मतलब हुआ, दिस इज व्हाट वी नो। अब आते हैं हम दूसरा टाइप के मिक्सचर में, जिसका नाम ही क्या है, नॉन टिल्टिंग मिक्सचर। नॉन टिल्टिंग मिक्सचर, नॉन टिल्टिंग मिक्सचर। अब ध्यान सुनना, नॉन टिल्टिंग मिक्सचर क्या है, सेम यही चीज है, लेकिन किस तरह का है, ये हॉरिजॉन्टली माउंटेड है। सेम डबल फ्रस्टम हॉरिजॉन्टली माउंटेड, नॉन टिल्टिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, हॉरिजॉन्टली माउंटेड या माउंटेड ओवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, माउंटेड ओवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस, माउंटेड ओवर हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ये हुआ क्या, ये चीज। इसका एग्जांपल देख लो। इसका एग्जांपल जैसे कि 250 NT। 250 NT का मतलब क्या हुआ, 250 लीटर का नॉन टिल्टिंग मिक्सचर है। 250 लीटर का नॉन टिल्टिंग मिक्सचर है। 250 लीटर नॉन टिल्टिंग मिक्सचर हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आती है। एक और बात है इसके साथ, एक और प्रॉब्लम है इसके साथ। प्रॉब्लम ये है कि जब ये रुक जाएगा तो इसकी तरह पीछे आपका कलेक्ट होके नहीं आएगा। व्हेन इट विल गेट स्टॉप, देन लाइक दिस द डिस्चार्ज विल नॉट कलेक्टेड एट द एंड। देन व्हाट विल हैपन, देन व्हाट विल हैपन, you have to remove the lid and you have to collect the discharge, so chances of segregation will increase. So segregation chance इसमें ज्यादा है, segregation के चांस क्या है, ज्यादा है। आज क्लास में क्या बच्चे नहीं है क्या, आ रहे देखो नहीं। इसके बाद आता है द थर्ड नंबर इज पेन मिक्सचर। थर्ड नंबर इज पेन मिक्सचर। ये स्मॉलर जॉब के लिए सुटेबल है, सुटेबल फॉर स्मॉलर जॉब, स्मॉलर जॉब के लिए सुटेबल है। एंड कंटेन्स स्क्रबर ब्लेड्स, कंटेन्स व्हाट, स्क्रबर ब्लेड्स, कंटेन्स व्हाट, स्क्रबर ब्लेड्स। मोस्ट यूनिफॉर्म क्वालिटी मिक्सचर, मोस्ट यूनिफॉर्म क्वालिटी मिक्सचर। अब बात का पूरा मतलब समझना, बात का पूरा मतलब समझना। पेन मिक्सचर कुछ इस तरह के मिक्सचर हैं, पेन मिक्सचर कुछ इस तरह के मिक्सचर हैं नो डाउट। ब्लू पेन सर, डोंट यूज ब्लू पेन। ओके ठीक है, ब्लू नहीं है वो पर्पल है, चलो इसको हटा देते हैं। ये शायद थोड़ा डार्क आ रहा होगा, इसको येलो कर देता हूँ। थोड़ी सी ब्राइटनेस भी मैं आपके लिए बढ़ा देता हूँ। चलो हाँ जी, एक मिनट रुकिएगा बस ना। चलो हाँ, पेन मिक्सचर जो है लैब में काम आते हैं। ये एक ऐसा टाइप का मिक्सचर है जिसमें एक पेन होता है, अंदर ब्लेड लगी होती है। तो या तो ब्लेड घूमती है, पेन फिक्स रहता है, या पेन घूमता है, ब्लेड फिक्स रहती है। छोटे कैपेसिटी के मिक्सचर होते हैं, 5-7 लीटर के बस। इसके अंदर स्क्रबर ब्लेड लगी होती है। स्क्रबर ब्लेड का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग किचन में यूज करते हैं ना स्क्रबर, बर्तन घिसने के लिए, सेम यही चीज है। वो
कंटिन्यूअसली ऐसे 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 घिसते रहती है पूरी। तो कोई भी पुराना कंक्रीट मिक्स चिपकता नहीं है, जिसकी वजह से किसी तरह का कोई नॉन यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। इसको पैन मिक्सचर बोलते हैं, इसको पैन मिक्सचर बोलते हैं। इन सब का बाप, द फादर ऑफ ऑल मिक्सचर। अब आएगा आइटम मेन अपना, क्या, जिसका नाम है क्या, ट्रांजिट मिक्सचर। जो टीएम वाली जो मशीन होती है, ट्रांजिट मिक्सचर। ये जो टीएम की मशीन है, ये मिक्स एज वेल एज ट्रांसपोर्ट, ये मिक्स भी कर लेती है, एज वेल एज क्या करती है, ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। मिक्स भी करती है, एज वेल एज क्या है, ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। देखा आपने ट्रांजिट मिक्सचर इस तरह के ट्रक पे लगे होते हैं, इस तरह के ट्रक पे लगे होते हैं। ये ट्रक के पहिए हैं और यहाँ पे ये ट्रांजिट मिक्सचर इस तरह का लगा होता है, देखा होगा आपने। इस तरह का ट्रांजिट मिक्सचर होता है। इसकी कैपेसिटी बहुत सही होती है भैया, इसकी कैपेसिटी 4 से 12 मीटर क्यूब के आसपास की कैपेसिटी है, भयंकर ही कैपेसिटी है। अब ये पूरे टाइम आपको पता है घूमते रहता है। स्पीड ऑफ मिक्सिंग कितनी है, 1 to 2 आरपीएम है। बिल्कुल धीरे धीरे घूमता रहता है। क्यों घूमता रहता है, ताकि अंदर पड़ा हुआ मटेरियल सेट ना हो और मिक्स होते रहे। टू अवॉइड द सेग्रीगेशन एंड सेटिंग, टू अवॉइड सेग्रीगेशन एंड सेटिंग, it should revolve throughout transportation. It should revolve throughout the transportation. ये throughout the transportation क्या करते रहता है, घूमते रहता है। ठीक है। अब देखो दूसरी बात, ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है उसको बोलते हैं ट्विन फिन टेक्नोलॉजी। ये जिस टेक्नोलॉजी पे काम करता है ट्विन फिन टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। इसमें 4 ब्लेड्स होती हैं, 2 इनर ब्लेड होती हैं, 2 आउटर ब्लेड होती हैं, 2 इनर स्पिंडल और 2 आउटर स्पिंडल। ये सब अपोजिट है एक दूसरे के। आउटर स्पिंडल बाहर से जो माल डालोगे उसको अंदर तक लेके आएगा, इनर स्पिंडल अंदर से घुमा के वापस फीड ओपनिंग पे लेके चला जाएगा। ये 4 ब्लेड इसके ऊपर चारों तरफ से ऐसा लगी होती है। इसके अंदर वाटर नोजल्स होती हैं। वाटर नोजल्स आर प्रोवाइडेड थ्रू आउट लेंथ। अब ये वाटर नोजल का यहाँ पे क्या काम है, सुनिएगा। वाटर नोजल का काम क्या है भाई, हमने क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू, इफ यू नो दैट वी नीड टू ट्रांसपोर्ट इट बाय 3 to 4 आवर्स, हम 3-4 घंटे ट्रांसपोर्टेशन में जाना है, तो हम इसके अंदर क्या डालेंगे, सारा सूखा मटेरियल डाल देंगे, ऑल द ड्राई मटेरियल, सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, एवरीथिंग वी विल मिक्स and we will start this water nozzle. Slowly drop by drop water will come and continuously throughout the journey it will start mixing. तो mix भी होते रहेगा और segregation भी नहीं होगी। और अगर आपने पहले से if you have added already prepared mix, अगर आपने already prepared mix डाला है, then you have to add what, retardant in this। क्योंकि अगर आपने retardant नहीं डाला, 4 घंटे के अंदर सेट हो जाएगा अंदर, पूरा ट्रक बर्बाद हो जाना आपको, पूरा ट्रक बर्बाद हो जाना है। ये सब की पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। क्लियर है? स्लाइड अप करें। अब मैंने 75% पे खोल रखी है, अप नहीं होगी, अप होगी तो ये नीचे वाला चला जाएगा। ये सब है अबाउट द मिक्सिंग, दिस ऑल थिंग्स यू शुड नो अबाउट द मिक्सिंग। आपको साथ साथ में लिखना है सारी चीजें, बिल्कुल इसमें तो नॉर्मल प्रोसेस।
कर सकता हूँ कि छोटा कर सकता हूँ इसको, ताकि आपकी चीजें एक बार में दिख जाए आपको, तो फिर वो अक्षर छोटे हो जाएंगे। इस तरह से किया जा सकता है। एक बार मैं सबको मिक्स कर दूं, एक ही स्लाइड में दिखा सकते हैं छोटा करके। ट्रांजिट मिक्सचर को पकड़ के यहाँ से कट करके यहाँ मिक्स कर दो। ये लो भाई, अभी एक ही स्लाइड में सब कुछ है। के अलावा व्हील बैरो, चक्के लगे हुए टोकरियां, उस पे ऐसे ऐसे करके चलो। व्हील बैरो के अलावा हो गया मैकेनिकल बैरो। अब ये वही चीज है, लेकिन उसके अंदर क्या लगी है, मशीन या इलेक्ट्रिफिकेशन किया हुआ है। व्हील बैरो, मैकेनिकल बैरो। इसके अलावा हो गया अभी हमने पढ़ा ट्रांजिट मिक्सचर हो गया। इसके अलावा हो गया अपना बेल्ट कन्वेयर, आपको बेल्ट से लेके जाना है। बेल्ट कन्वेयर। नॉट सूटेबल लिख सकते हैं, नॉट सूटेबल इफ स्लम्प लेस देन 50 mm, क्योंकि लेस देन 50 mm स्लम्प हुआ बहुत सूखा है, बेल्ट के वाइब्रेशन से ही सेग्रीगेट हो जाएगा। बेल्ट कन्वेयर। इसके अलावा डंप ट्रक का मतलब क्या है? डंप ट्रक मतलब कि ऐसे ट्रक जैसे ट्रैक्टर की ट्रॉली होती है, ट्रॉली में सामान भर दिया और जाके पलट दिया, तो डंप ट्रक है। ये जितने भी आपको बताएं, ये सब के सब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में काम आ रहे हैं। These all are useful in horizontal movement, or I can say movement in horizontal direction. ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में काम आ रहे हैं। सिमिलरली डेडिकेटेड टू वर्टिकल मूवमेंट there are two type of transportation method। जैसे कि एक तो आपका बकेट टावर हो गया, दूसरा आपका क्रेन हो गया। बकेट टावर एंड क्रेन is useful up to 3 to 4 floors, और बकेट टावर तो आप जानते ही हो, पूरी एक लिफ्ट लगी हो, there is a lift outside the building which goes with the bucket। इसके अलावा कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो आपको हॉरिजॉन्टल मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट दोनों में हेल्प करते हैं, जैसे कि प्लेजर बूम, जैसे कि शूट्स, और जैसे कि पाइप्स या फिर पंपिंग। ये आपको हॉरिजॉन्टल भी ले जा सकते हैं और वर्टिकल भी ले जा सकते हैं, और वर्टिकल भी ले जा सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्या?
पाइप और पंपिंग। जो पाइप आप काम में लेते हो, डायमीटर ऑफ पाइप मस्ट नॉट बी लेस देन 125 mm। बाकी होने में तो ये 8 to 10 टाइम्स ऑफ NMSA हो सकता है, 8 to 10 टाइम्स ऑफ NMSA हो सकता है, 8 to 10 NMSA हो सकता है। बाकी ले जाने में तो आप इसको या करने में तो आप इसको कितना भी कर सकते हैं। मिनिमम 125 mm से कम नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी मोर देन 125 mm। उसके अलावा इसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 मीटर क्यूब पर आवर से 150 मीटर क्यूब पर आवर तक वेरी करती है। द कैपेसिटी ऑफ वेरीज फ्रॉम 150 मीटर क्यूब पर आवर टू, उसके लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो हॉरिजॉन्टली आप 400 मीटर जा सकते हैं और वर्टिकली आप लोग 80 मीटर जा सकते हैं, बट जब भी आप पाइप से ट्रेवल करेंगे आपको स्लम्प लॉस होगा, स्लम्प लॉस आफ्टर ट्रेवल्ड बाई पाइप। ऐसा क्यों? बिकॉज पाइप का फ्रिक्शन आपकी एनर्जी खा जाएगा, और जैसे आपकी एनर्जी खा गया, इंटरनल एनर्जी खा गया, वर्केबिलिटी चली गई। मोर ओवर पंपेबल concrete is expected to be बेस्ट क्वालिटी कंक्रीट। जो कंक्रीट पंपिंग की जा रही है, द कंक्रीट इज सपोज्ड टू बी गेट पंप, दैट इज आल्सो नोन एज बेस्ट क्वालिटी कंक्रीट। अब वो बेस्ट क्वालिटी कंक्रीट क्यों है उसको समझ लो, क्योंकि अगर कोई पंपेबल है, सोचो पंप पे से जा रही है, तो बहुत ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो अगर हुआ तो भी काम का नहीं है। व्हाई इट इज नॉट वर्केबल? बिकॉज जैसे ही पीछे से प्रेशर आएगा द वाटर विल सेपरेट आउट। आप हॉस्टल में दाल खाते हो, आप कटोरी को ऐसा हल्का सा टिल्ट करो, पानी बाहर आ जाएगा, बिकॉज पानी एक्सिस में, तो पानी सेपरेट आउट हो गया, मतलब सेग्रीगेशन हो गया। और अगर बहुत ही सूखा कंक्रीट हुआ, इफ इट इज वेरी लो वर्केबल कंक्रीट और आई कैन से वेरी लेस वाटर सीमेंट रेशियो, तो क्या होगा? फ्लो ही नहीं कर पाएगा, बिकॉज ऑलरेडी एनर्जी कम है, ऊपर से ये एनर्जी आपका खाई जाता है, तो आपके पास कुछ बचेगा ही नहीं। आप पाइप के अंदर मुंह डाल के ऐसा वेट करते रहोगे, कंक्रीट बाहर ही नहीं आएगा। बात है क्लियर आपको? इसलिए जो चीज पंप हो सकती है वो सबसे बढ़िया क्वालिटी की। या तो गॉट इट? This is about the transportation. Now next one is placing. Placing should be done uniformly. Uniformly from the height as short as possible. जितनी छोटी हाइट से कर सको उतना ही छोटे हाइट से करना है। टू अवॉइड सेग्रीगेशन, तो इसमें ऐसा कोई रूल वगैरह नहीं है, बस जितना कम हाइट से फेंको उतना अच्छा है, नहीं तो सेग्रीगेशन होगा, नहीं तो क्या होगा? सेग्रीगेशन होगा। इतनी सी बात है। ओनली ध्यान क्या रखना है, नई चीज आपको याद क्या रखनी है? अंडर वाटर प्लेसिंग मेथड्स, जिसमें एक मेथड तो है प्लेसिंग इन बैग्स, दूसरा मेथड है प्री पैक्ड कंक्रीट, तीसरा मेथड है ट्रिमी कंक्रीट या ट्रिमी मेथड, ऑल्सो यूजफुल फॉर कंजेस्टेड प्लेसेस। इसके अलावा है प्री पैक्ड हो गया, प्लेस इन बैग्स हो गया, बकेट क्या बोलेंगे, प्लेस इन बकेट,
पम्पेबल नहीं है, पंपेबल है यार वो, पंपेबल। पंपेबल कंक्रीट।